تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ وہ ایران سے آئے یا افغانستان سے آئے، بہت سے کے نام آپ جانتے ہیں، کہیں اورنگزیب ہے، کہیں شاہ جہاں ہے، بہت ساری نشانی اس ملک کے اندر انہوں نے چھوڑی۔ دلی کا لال قلعہ ہے، دلی کی جامع مسجد ہے، ادھر چلے جاؤ آگرہ تو وہاں بہت ساری نشانیاں ان بادشاہوں کی موجود ہیں۔ یہاں آ کر کے انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، غیر نہیں سمجھا۔ فرق یہیں سے آیا۔ یہ اتنے دنوں تک یہاں بادشاہ حکومت کر گئے، لیکن یہاں کا ہندو ان کی کوئی برائی نہیں کرتا۔ وہ مذہب کے دشمن نہیں تھے، وہ ہر مذہب کا احترام اور ہر مذہب کی عزت کرنے والے تھے۔ ان کے درباروں کے اندر جہاں مسلمان تھے، ان کے درباروں کے اندر وہاں غیر مسلم بھی تھے، بلکہ یہ کہو کہ اکبر جیسے کے دربار میں تو حکومت ہی دوسرے لوگ کر رہے تھے، تو اس لیے دنیا نے انہیں گلے لگایا، پورے ملک نے انہیں گلے لگایا۔ اور یہ لوگ جو آئے تو انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا۔ یہاں جتنے بڑے عہدے تھے ان تمام بڑے عہدوں کے اوپر انہوں نے اپنے آدمی انگریز بٹھائے۔ ہندوستانیوں کو غلامی کا درجہ دیا، تم بڑے عہدے کے اوپر نہیں رہ سکتے۔ انگریز کے زمانے میں یہاں کوئی گورنر ہندوستانی نہیں ہو سکتا تھا، ضروری تھا کہ وہ انگریز ہو۔ اس لیے یہاں علماء خلاف نہیں ہوئے، یہاں ہندو بھی خلاف اٹھے، یہاں عیسائی بھی خلاف اٹھے، ہر مذہب کا آدمی انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے میدان کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ ہندوستان کو اپنا نہیں جان رہے تھے۔ یہاں کا مال لوٹ کر کے وہ باہر لے گئے۔ لال قلعے کے اندر وہ ہیرے، وہ موتی، وہ جواہرات تھے جن کی قیمت آج پورے ملک کی مالیت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ انگریز یہاں آیا تو لال قلعے کو انہوں نے لوٹ ڈالا، تمام ہیرے جواہرات یہاں سے نکال کر کے انہوں نے برطانیہ میں پہنچا دیے۔ اس لیے ضروری تھا کہ یہاں کا ہر باشندہ، ہر رہنے والا اس کے خلاف کھڑا ہو۔ علماء کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے، دوسرے کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ علماء بھی کھڑے ہوئے۔ علماء کو اس لیے میدان میں آنا پڑا کہ انہوں نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی۔ ان کا حال یہ ہوا، جبھی آپ جو مولانا بیان کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو جلانا، ختم کرنا انہوں نے اپنا ایک شیوا بنا لیا۔ وہ رہتے یہاں لیکن اس ملک کو اپنا ملک جانتے، کسی کو کوئی لڑائی نہیں تھی، کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ وہ ملک ہے جنہوں نے 1100 سال تک باہر سے آنے والے مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا، تو آخر 100 سال کے اندر ہی ان سے اتنی بڑی دشمنی کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ لوگ یہاں سے گئے، انہیں نکالنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، اور جب یہ یہاں سے نکلے ہیں تو اس کا نام رکھا گیا یوم آزادی۔ یعنی ایسی طاقت سے ملک آزاد ہو گیا جو اس ملک کو غلام سمجھ رہا تھا، جو اس ملک کو اپنا نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو 15 اگست میں منائی جاتی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن آج اس ملک کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ دیکھو بڑی سے بڑی طاقت بھی اپنوں کو ناراض کر کے حکومت نہیں کر سکتی۔ اب یہ ملک سے نکلے، کیا کیا قربانی کس نے کیا دی، اتنا تو وقت نہیں کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب یہ ملک سے نکل رہے ہیں تو یہاں ملک کے اندر حکومت کس کی ہو، یہ مسئلہ بڑا اہم تھا۔ یہاں بہت ساری قومیں ہیں، اس ملک کو تو آپ ایسا ملک سمجھیے جیسا کہ کوئی باغیچہ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، کہیں اس میں گلاب بھی ہے، کہیں اس میں چمیلی بھی ہے، کہیں اور ہر طرح کے پھول ہیں، اور تبھی وہ چمن سجتا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ حال ہے، یہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر طریقے سے یہاں پر پھول کھل رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ آیا کہ یہ حکومت یا انگریز جا رہا ہے تو حکومت کا مالک کون بنے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ یہاں مسلمانوں کے اندر 2 جماعتیں پیدا ہو گئیں،
एक जमात तो वो थी जो कहती थी कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अगर हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ होगा तो हम उससे बैठ कर के दूर कर लेंगे। और एक जमात हम में ऐसी खड़ी हो गई जिसने कहा नहीं, हम तो मुल्क का बंटवारा चाहते हैं, हम अलहदा रहेंगे। इनको कहा जाता है मुस्लिम लीगी। अगर आप 1500 साल इस्लाम की तारीख देखें तो 1500 साल इस्लाम की तारीख में कहीं ये नहीं मिलेगा कि एक इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी बगैर किसी वजह के मुल्क को छोड़ करके भाग रही हो। ये पहली मिसाल थी। इसलिए जो लोग ये एतराज करते हैं कि यहाँ ये उलमा क्यों रहे, ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, ये उनकी अनजाने की बात है। तारीख कहीं नहीं बतलाती। ये तारीख के खिलाफ फैसला था, फिर ये वो फैसला था जो पूरे मुल्क के मुसलमानों के हक में नहीं था। पूरे मुल्क के मुसलमानों के जाने का मसला ही कभी पैदा नहीं हुआ। ये तो कुछ लोग थे जो उस तंजीम से जुड़े हुए थे, जो अलहदा तकसीम चाहते थे। बतलाओ, अगर यहाँ से मुकम्मल मुसलमान चले जाते तो आखिर हमारे बुजुर्गों की निशानियां कहाँ जाती? तुम ये सोचो, जहाँ इस मजलिस के अंदर आप हजरात बैठे हैं, ये मदरसा मिसबाहुल उलूम, इसकी बुनियाद सन 46 में रखी गई, यानी मुल्क की तकसीम से पहले। कहाँ जाता है तुम्हारा मदरसा? कहाँ जाते हैं हमारे बुजुर्ग? जिन हमारे बुजुर्गों ने यहाँ इदारे कायम किए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की, दारुल कायम किया, मजारुल कायम किया, ये क्या तकसीम से पहले इदारे नहीं है? ये तकसीम से पहले इदारे हैं। फिर यहाँ जो गरीब मुसलमान रह जाते, क्या उन्हें इस हाल में छोड़ दिया जाता कि उनका कोई सहारा ना होता? हम तो दाद देते हैं अपने उन बुजुर्गों को जिन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ के उन कमजोर मुसलमानों को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, हम अपनी निशानियों को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। हमारा फरीजा है कि हम गैरों के अंदर जाएं और इस्लाम की आवाज पहुंचाएं। उन्होंने ये फैसला किया और आज ये फैसला हमारे और आपके सामने है। ये दिन जिसको यौम जमहूरिया कहा जाता है, जमहूरियत का मतलब क्या है? यूं तो नाम सुन लेते हैं, हिंदी में कह देते हैं लोकतंत्र, लेकिन आप ये बताओ कि ऊपर दिल्ली तक, यूपी तक और हर जगह कौन सी हुकूमत काम करती है? ये वो हुकूमत काम करती है जिसे आप अपने वोट से चुनते हैं। आपको इख्तियार दिया जाता है कि 5 साल के बाद में आप अपनी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करो, अपनी मर्जी की हुकूमत छांटो। आज हुकूमत यहाँ ये नहीं कह सकते कि मोदी की है, ये नहीं कह सकते हैं कि अखिलेश की हुकूमत रही या किसी और की रही है, तो आपकी हुकूमत है। आप ही तो 5 साल के बाद में अपने वोट से हुकूमत को छांटते हैं। अगर पहला हाकिम सही नहीं रहा तो आप बदल दीजिए, 5 साल के बाद में फिर दूसरा हाकिम लाओ। आज आप यौम जमहूरिया की खूब देख रहे हैं। आज ये मुल्क है आपका हिंदुस्तान, जो जमहूरियत का मुल्क कहलाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क ये वो है जहां हुकूमतें 5 साल के बाद पब्लिक छांटती है। लेकिन इसकी खूबी देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी इदारा जो कहीं बुखारी शरीफ की आवाज उठा रहा है, कहीं कुरान शरीफ की आवाज उठा रहा है, क्या इस 72 साल के अंदर दारूम के ऊपर कोई आँच आई? दारूम आपका बराबर चल रहा है, कानून आपका हक दे रहा है, आप चलाइए अपना इदारा। आपका ये मदरसा मिसबाहुल उलूम जो आज 73 साल की उम्र को पूरा कर रहा है, क्या कभी से आने वाली हुकूमत ने, वो किसी भी पार्टी की हुकूमत आई हो, भाजपा की आई हो, कांग्रेस की आई हो, किसी की भी आई हो, क्या आपके इस इदारे के ऊपर आँच आई? किसी ने नहीं छुआ। दुनिया के अंदर दीन की आवाज पहुंचाने वाली तबलीगी जमात, उसका मरकज कहाँ है? आपके हिंदुस्तान में है। दुनिया के अंदर आप ही के मुल्क से तबलीगी जमातें जा रही हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि ये कौन से कानून की देन है? कोई पाबंद कानून नहीं करता। और अगर मानो
कोई नाकारा हुकूमत ऐसी आ भी गई जो इस कानून के अंदर कुछ रुकावट डाले तो अदालत उज़्मा बड़ी अदालत ऊपर बैठती है, वो उनकी इस बात को तस्लीम ही नहीं करते, वो फौरन अदालत उज़्मा उनकी बात को रद्द कर देते हैं। अगर आप इस्लाम के अंदर तलाश करें कि क्या कोई जमाना ऐसा आया है जिस जमाने के अंदर इस किस्म की बातें अकायद और जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम कर ली हों, या कोई जमाना ऐसा आया है कि जिस जमाने के अंदर सहाबा ने कोई ऐसी बात तस्लीम कर ली हो। उठाओ तारीख देखो, सन 6 हिजरी के अंदर, सन 6 हिजरी के अंदर जिस वक्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा अदा करने के लिए जाना चाहते हैं, और उस जमाने के अंदर मक्के के ऊपर कब्जा वहां के बड़े बड़े सरदारों का, बड़े बड़े काफिरों का था। आकर के खड़े हो गए, रुकावट बन के खड़े हो गए, कहने लगे नहीं, मक्के में नहीं घुस सकता है मोहम्मद और उसका साथी। बहुत कुछ कहा गया, समझाया गया, अरे भाई हम मक्के के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, हम उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, हमें उम्रा अदा करने की इजाजत दो। लेकिन मक्के वाले नहीं माने। उस वक्त एक सुलह होती है, उसका नाम रखा गया सुलह हुदैबिया। इसकी अगर शर्तें पढ़ो तो अजीब शर्तें हैं। तो ये पाता है कि इस वक्त में आप मक्के में नहीं घुस सकते हैं, वापस जाओ, ये भी आपने तस्लीम कर लिया। तो ये पाया कि उसके बाद में अगर हमारा कोई आदमी यानी मक्के का रहने वाला काफिर अगर मदीने में जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस लौटाएंगे, और अगर मदीने का कोई आदमी मक्के में आ गया तो मक्के वाले उसे वापस नहीं लौटाएंगे। ये बात आप तस्लीम कर लेते हैं। अगरचे बाद हजरात के दिल में बात खटकी, ये कैसी दबी हुई शर्त है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बर्दाश्त न कर सके, बोल पड़े, कहने लगे अल्लाह के नबी क्या हम हक के ऊपर नहीं? आपने फरमाया हाँ हम हक के ऊपर हैं। कि फिर हम इतनी दबी हुई शर्त को क्यों माने? हम तो नहीं मानने के इस बात को कि हमारा आदमी उनके यहाँ जाए तो वो उसे अपने कब्जे में कर ले, और अगर उनका आदमी हमारे यहाँ आए तो हम उसे तस्लीम न करें, हम उसे वापस लौटाएं। और अजीब वाकया उस वक्त भी पेश आया। एक शख्स मक्के से आ रहा है, जख्मी है, खून बह रहा है। कसूर उसका यह है कि वो मुसलमान हो गया था। मक्के वालों ने इतनी पिटाई की कि लहू लुहान, और ऐसे वक्त में जबकि ये फैसला लिखा जा रहा था, उस वक्त में वो मजमे में आए। क्या हाल मजमे का होगा? हंगामा मच गया। कहने लगे अल्लाह के नबी ये क्या हो रहा है? हमारा आदमी जख्मी होकर के आ रहा है, हम इसे फिर वापस मक्के में लौटाएं तो इसकी तो पिटाई और ज्यादा होगी। लेकिन आपने फरमाया फैसला हो चुका है, फैसले के ऊपर दस्तखत मैं कर चुका हूं, अब यह फैसला नहीं लौटेगा, इनको वापस ही जाना पड़ेगा। यह है वो सुलह हुदैबिया। ये आपने तस्लीम कर ली। अगर कहा लेकिन इसमें एक शर्त ये थी कि जब तक ये सुलह रहेगी कोई आपस में लड़ाई नहीं होगी। जब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सुलह के ऊपर गौर करते हैं, जिसके बारे में कुरान पाक फतेह करार देता है, कहता है तुम कामयाब हो गए, तो आखिर कौन सी इसमें ऐसी शर्त है जो कामयाबी के लिए खुशखबरी अल्लाह की तरफ से आ गई? तो ये कहा जाता है। अब मुसलमानों को वो मुंह का हाथ आ गया कि अमन के साथ में रह करके इस्लाम की आवाज दूसरों तक पहुंच जाए। चुनाचे ये सुलह सिर्फ 2 साल चली, और 2 साल के जमाने में जब यही मुसलमान मक्के के ऊपर आ रहे हैं, जब अब इनकी तादाद 10,000 थी। तो अगर आप ये सवाल करें साहब मुसलमान उलमा ने अंग्रेज के खिलाफ तो जिहाद किया, अंग्रेज के खिलाफ तो वो लड़ाई के मैदानों में निकल गए, और अब ये जो नारा है जमहूरियत, ये जो 26 जनवरी आ रही है, इसमें भी तो मुसलमान बहुत परेशान हैं। अभी हमारे मुकर्रिरीन की जुबानों के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें आ गई, लेकिन भाई ये कुछ सरफिरे लोगों की बातें हैं।
सही बात यह है कि यहाँ का समझदार हिंदू हो या ईसाई हो या कोई भी हो, वो इस दिन की कदर करता है। कहता है इस मुल्क को चलाने के लिए इससे बेहतर कोई कानून हो ही नहीं सकता है। और मैं तो आप लोगों से ये कहता हूं कि इस वक्त में उस सुलह हुदैबिया से सबक लो। इस्लाम जो दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम लेकर के आया है, आप उस बात को लोगों तक पहुंचाओ। अब भी दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर वो लोग हैं जो इन बातों को सुनना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर सुकून हो जाए। अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब भी इस मुल्क के अंदर वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क का जो कानून है, सेकुलर कानून, ये बेहतर कानून है, इसकी हिफाजत की जाए। ये कानून अगर टूट गया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो भाई ये है यौम जमहूरिया, जो मैंने मुख्तसर तौर से तुम्हारे सामने बात रखी है कि इस मुल्क को चलाने के लिए ये कानून बनाया गया है। और इस कानून के बनाने में अगरचे नाम तो आ जाता है किसी का भी, लेकिन हमारे तमाम ही उस जमाने के लीडर इसमें शामिल रहे। आप इससे फायदा उठाइए। आपका यौम जमहूरिया इस बात का ऐलान करता है कि आप अपने इदारे अच्छी तरह चलाओ, आप अपने कॉलेज कायम करो, आप अपने स्कूल कायम करो, अपने मजहब की तबलीग करो। तुम्हारी तबलीग जमात के ऊपर कोई पाबंदी ये कानून नहीं बनाता। तो भाई इससे फायदा उठाइए। अगर ये खुदा न करे ये कानून इस मुल्क से खत्म हो गया तो अब इसकी जगह आएगा हिंदू राष्ट्र और वो इस मुल्क को तबाह कर देगा। क्योंकि ये वो कानून होगा जो सबके हक खत्म करके एक जात को हक देगा, फिर वही अंग्रेजियत आ जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जब हुकूमत बनाने का वक्त आए तो सोच समझ करके जमहूरी पार्टी को वोट दो। कल कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम पछताते रह जाएं। तो भाई ये बातें हैं, ये चंद बातें मैंने आखिर में इसलिए अर्ज कर दी हैं ताकि आप यौम आज़ादी को भी समझ लें और यौम जमहूरियत को भी। वक्त काफी खिंच गया है। आज पूरे मुल्क के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है और इसका मनाना हमारे लिए यही है कि हम इस कानून से फायदा उठाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने इदारे कायम करो, ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज कायम करो, अपने स्कूल कायम करो, ज्यादा से ज्यादा इस्लामी मदारिस कायम करो। अपने बच्चों को ये बताओ कि देखो तुम इस मुल्क के मुहाफिज हो, तुम इस मुल्क से जाने वाले नहीं हो। और हम तो यहाँ तक कह देते हैं, जो पागल लोग ऐलान करते हैं कि मुसलमान यहाँ से निकल जाएं, अरे भाई मुसलमान तो यहाँ से निकलने वाला है नहीं। यहाँ तो मरने के बाद भी 3 गज जगह किस मुल्क को ले लेंगे। जानेंगे तो वो लोग जो मरने के बाद हवा में उड़ गए, आग में जला दिए। हम क्यों जाए, मुल्क हमारा है। तो भाई इस मुल्क को ये दिखा दो कि हम यहाँ के मुहाफिज हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा हैं उन्हें अपनी तारीख वाकई मालूम नहीं। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे स्कूलों के तलबा जब कोई सरकारी छुट्टी होती है और वो छुट्टी ऐसी होती है जो कि मुसलमानों के किसी तारीखी दिन के ऊपर होती है तो उन्हें ये भी मालूम नहीं होता। अफसोस इस बात का हुआ, एक रोज मुझे मिल गए कुछ स्कूल से आने वाले तलबा। भाई क्या हुआ, कहने लगे छुट्टी हो गई। आज किस बात की छुट्टी है? तो कहने लगे मास्टर लोग यूं कहते कोई तुम्हारा ही त्योहार है। और था क्या वो 12 रबीउल अव्वल थी, जिस तारीख के अंदर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उससे ज्यादा बरकत वाला दिन और कौन सा होगा। लेकिन अफसोस हमारे तलबा को ये भी मालूम नहीं कि ये तो हुजूर की पैदाइश का दिन है। कितनी बड़ी गफलत की बात है। ये यौम आज़ादी, यौम जमहूरियत, इसे तो हम क्या जानेंगे, हमें तो अपने नबी की भी तारीख मालूम नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे बच्चों को कम से कम अपनी इस्लामी तारीख मालूम होनी चाहिए। कब हुजूर पैदा हुए, मक्का क्या है, मदीना क्या है, किस तरीके से इस्लाम दुनिया में आया। अगर कोई आपके सामने ये एतराज करे कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया तो तुम जो मुसलमान हुए हो, तुम्हें तो औरंगजेब ने अपने डंडे से मुसलमान कर लिया। ये भी तो कहना लोग कि मुसलमान जो यहाँ हुआ है वो जबरदस्ती हुआ है।
हमारे तलबा को या आपको या हमारे पढ़े लिखे तबके को ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया है तो कहाँ से आया, कौन लोग इस्लाम लेकर के आए। यहाँ साहबा की जमात ने कभी जिहाद नहीं लड़ा। अगर आए हैं बादशाह और उनकी जंग हुई है तो वो अपनी हुकूमत के लिए हुई है, इस्लाम के फैलाने के लिए उन्होंने कहीं भारत के अंदर जंग नहीं लड़ी। तो फिर इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया तो कहाँ से आया। और ये तो हिंदुस्तान तो आज कह रहे हो, पाकिस्तान भी तो इसी में शामिल है, बांग्लादेश भी इसी में शामिल है। ये इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद, इतनी बड़ी मुसलमानों की जमात, कौन इस इस्लाम को लेकर के आ गया है। कभी ऐसी तारीख देख लिया करो। हिंदू लोग यानी सबको नहीं मैं कहता, उनमें बाजे जो 3 किस्म के लोग हैं वो ये एतराज उठाते हैं, अरे यहाँ तो डंडे से तुम मुसलमान हो गए। और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। चलो वो तो हम और मजलिसों में देंगे, अब तो बहुत ज्यादा खींच दिया। लेकिन अगर यहाँ की तारीख देखो तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया है मालाबार में। जिस जमाने के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे और मक्के में रहने वाले गैर मुस्लिमों ने आपसे कहा कि तुम अगर नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े कर दो, तो आपने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 हिस्से हो गए, 2 टुकड़े हो गए। और ये 2 टुकड़े दुनिया के अंदर हर जगह नजर आए। मालाबार का जो मुसलमान था वो मालाबार का जो बादशाह था वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था। उसने देखा आज चांद जो है 2 हिस्सों में नजर आ रहा। उसने अपने दरबारियों से कहा ये वक्त लिखो, कौन सी तारीख है, कौन सा वक्त है, और इस वक्त के अंदर हमने चांद के 2 टुकड़े देखे हैं। ये लिख लिया गया। चंद दिनों के बाद अरब से तिजारत करने वाले लोग समुद्र के रास्ते मालाबार पहुंचे। बादशाह ने कहा कोई बात सुनाओ। उन ताजिरों ने कहा जी और तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ मक्के में एक शख्स पैदा हुआ है और वो अपने को नबी कहता है। बादशाह ने कहा उनकी कोई बात सुनाओ। उन्होंने कहा और कुछ नहीं, हमने उससे कहा कि तू अगर नबी है तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। तो उसने उंगली का इशारा किया और उंगली के इशारा करते चांद 2 हिस्सों में बट गया। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा लाओ वो रजिस्टर उठा करके देखा गया। पूछा आने वालों से अच्छा वो कौन सी तारीख थी, कौन सा वक्त था। तो वही तारीख और वही वक्त जो बादशाह ने चांद के 2 हिस्से देखे थे वही उसे लिखा हुआ मिला, वही आने वालों ने बताया। ये सबसे पहला बादशाह हिंदुस्तान का जो मुसलमान हुआ है। लेकिन आगे चल करके तारीख जरा कुछ मजबूर सी हो जाती है। ये यहाँ से चल दिया कि मैं अपने नबी की ज़ियारत करूंगा, ईमान कबूल कर लिया उसने यहीं, उसके साथ बहुत सारे वजीरों ने भी ईमान कबूल किया। ये यहाँ से चला है। वो जमाना कश्ती से सफर का था। आगे कुछ तारीख नहीं बतलाती कि ये हुजूर के पास कब पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ये सबसे पहला मुसलमान है जो हिंदुस्तान के अंदर ईमान कबूल करने वाला। आप लोग या हम लोग ऐसे हिंदुस्तान के रहने वाले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, यहाँ इस्लाम किसी जिहाद से नहीं आया। ये बुजुर्गों के हाथों ईमान हमने कबूल किए हैं। बुजुर्ग लोग आए, बादशाह लोग बाहर से आए, अपने साथ बुजुर्गों को लेकर के आए। उनकी ये मेहनत है, उनकी मेहनत के ऊपर यहाँ इस्लाम फैला है। तो गोया कि एक अमानत है हमारे और आपके पास, हम इस दीन की हिफाजत करें, दुनिया को ये बताएं कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं, तुम हमारे मोहताज हो। हमारे पास वो दीन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, इसलिए तुम्हें जरूरत हमारी है। तुम ये कहते हो कि साहब हिंदुस्तान से निकल जाओ, हम तुम्हारे मोहताज नहीं। मुसलमान तो जहाँ जाता है वही उसका वतन है। मोहताज अगर है तो हिंदुस्तान तुम्हारा है। तो भाई ये यौम जमहूरिया है, आज तुम्हें मौका मिल गया है इस्लाम की खिदमत करने का, दीन फैलाने का। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह को अपना फज़्ल व करम फरमा। हमने जो बातें यहाँ पर की हैं अल्लाह उन तमाम सही बातों के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा।
ہمارے اس ملک کو اے اللہ تو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا، ہم سے جو کچھ اسلام کی خدمت ہو سکتی ہو اے اللہ وہ خدمتیں تو ہم سے لے لے، اور ہماری ان خدمتوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ ہمارے تمام مدارس، ہماری تمام جماعتیں اے اللہ تو ان کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے علم کو، حدیث کے علم کو اے اللہ تو ہمارے گھروں میں پہنچا، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کا مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ تو امن کی زندگی دے، سکون کی زندگی دے، عالم اسلام کے اندر جو بحران پیدا ہو گیا ہے اے اللہ تو اسے دور فرما دے، وہاں پر اے اللہ تو امن اور سکون دے دے۔ اس ملک کے اندر جو ہمیں پریشانیاں ہیں اے اللہ وہ تمام پریشانیاں ہماری دور فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی دور فرما، جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان گھروں کے اندر ان کی شادیوں کے انتظام کرا دے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، جب تک دنیا میں رہیں تو ایمان والی زندگی دے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔